displacement method. In our last class, we had discussed this. We have discussed the approach behind displacement method, and it has been told to you that different methods incorporated with this approach are based on a simple philosophy. What was the first step? मैं लिखा चुका हूं, मैं क्या थे बताऊं? First one step was remove all degree of freedom at every joint of the structure. Remove all degree of freedom. इससे भी पहले, prior to that, find out the total degree of freedom. First तो वही है, find out the total degree of freedom, and it will be the kinematic indeterminacy. It will be the kinematic indeterminacy considering all members are कौन से? Inextensible. मेंबर का लेंथ बदलता नहीं है. Find out the kinematic indeterminacy without considering any change in the length of members. And second one step was to find out the remove all degree of freedom from the joint. Remove all degree of freedom from the joint and calculate the end moment. And I have told you that these moments are nothing but fixed in moment. These moments are fixed in moment. So what are the fixed in moment? Fixed in moments are the moments generated at the ends of the beam. Due to external loading only. Due to external loading. And for this purpose, all nodes are free from any degree of freedom. That was the first step. Second step, what was the second step? Right. Apply unit, है ना? Apply unit rotation one by one and find out the moment required. Means find out the moment required for unit rotation at each joint one by one. Find out the moment required to produce unit rotation at every joint one by one. This was the second step. And these moments are called as कौन से? Stiffness. These moments are called as stiffness. We have to provide unit rotation at every joint. Every joints में कहाँ पे? जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वहाँ पे. जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है वहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. वहीं पे हम यूनिट रोटेशन प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करती है. यूनिट रोटेशन प्रोवाइड किया, देन कैलकुलेट द मोमेंट रिक्वायर्ड एंड दैट मोमेंट्स आर कॉल्ड एज स्टिफनेस. ओके. एंड द नेक्स्ट स्टेप, थर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी ओवर. out of this part of stiffness, some part of the moment produced at the joints for unit rotation are being transferred to the other joint. एग्जाम्पल बताया था तार वाला. अगर यहाँ पे हम घुमाते हैं तो ये, अगर यहाँ पे घुमाते हैं तो यहाँ पे अपने आप क्या हो जाता है? रोटेशन आता है. तो अगर हम कहीं पे यूनिट रोटेशन की वजह से, यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करने की वजह से मोमेंट अगर हम लगा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका कुछ पार्ट दूसरे सिरे पे भी ट्रांसफर करेगा. और इसी को मैंने बोला है कैरी फॉरवर्ड.
इसी को बोला है कैरी फॉरवर्ड, एंड दैट कैरी फॉरवर्ड विल डिपेंड अपॉन द कैरी ओवर फैक्टर, दैट विल डिपेंड अपॉन द कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर को मैंने डिफाइन किया था, इफ दिस इज हिंज एंड दिस इज फिक्स, तो कितना कैरी 1/2, हाफ पार्ट। इफ दिस इज हिंज, दिस इज आल्सो हिंज, कैरी फॉरवर्ड 0। इफ दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज आल्सो फिक्स्ड, 1, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट फैक्टर कैरी वी हैव टू प्रोवाइड कैरी, we have to carry forward some part of the moment provided at the joint to make unit rotation. What was next step? Next step number 4, है ना। What was the next? After calculating this, the next step is to write the end moment, final end moment in terms of किसके किस में fixed in moment, in terms of fixed in moment, और दूसरा क्या, rotation, in terms of fixed in moment and rotation. It means final equation for the end moment is the function of किसकी fixed in moment and दूसरा किसका, rotation at the degree of freedom at the joint। बात समझ में आ रही जो कह रहा हूं? एंड मोमेंट की इक्वेशन आपने लिखा था, क्या थी वो, फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2ei/L इंटू थीटा बी प्लस 4ei/L थीटा ए। क्या है ये? दीज आर द फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इक्वेशन लिखनी है एंड मोमेंट की, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या था, 5th स्टेप, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। वी हैव टू अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, and with the help of that equilibrium equation, what we are going to calculate? Now we are going to calculate the degree of freedom. We are going to calculate degree of freedom, and after calculating the degree of freedom, है ना, these values will be placed to find the end moment. And once the end moments are known, the structure is determinate. That has been communicated in your last class. जो लोग नहीं थे उनके लिए भी मैंने रिवाइज कर लिया इन ए वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। पूरा 2 घंटे ये चला था लास्ट उसमें, ठीक है। सो इसमें मैं आपको 1 by 1 मैं हालांकि रिफर कर सकता हूँ कि ये फिक्स्ड इन मोमेंट है ये, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा व्हाट आर द फिक्स्ड इन मोमेंट, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, फिक्स्ड इन मोमेंट, और दूसरा क्या होगा, स्टिफनेस, ठीक है ना। वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा मैं, और रिजल्ट्स आपको याद रखने, वो रिजल्ट्स आपको दिमाग में रखने, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट। Suppose our beam is continuous beam having 3 segments, and this part of beam suppose carries a UDL with intensity W, and suppose another part of the segment carries point load with A part from left and B part from right, and suppose here this part carries a triangular load, this part carries a triangular load, UVL. So and length, suppose this is L, this is also L, this is L, and its modulus of elasticity E and moment of inertia I, इसका भी EI, इसका भी EI. Suppose this is the continuous beam having this node as A, this node as B, this node as C, and this as D.
So through this continuous beam, I want to tell you, I want to explain what are the fixed in moment and how they will be calculated. However, in solving this question, in solving the questions of displacement method, we will use direct result, but I will calculate that result. Okay. So what will be the fixed in moment for this beam? If we are going to solve this beam, if we are going to analyze this beam, और आपको मालूम है एनालाइज में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एनालाइज में, सारे फोर्सेस को हमें कैलकुलेट करना होता है. और कौन कौन से फोर्सेस होंगे यहाँ पे? 3 forces will be here, 1 force will be here, 3 force कौन से? 2 forces, vertical and moment. Horizontal तो लेंगे नहीं हम, because it is a beam and all loads are vertical, है ना. अगर इसको रोप से बांध दिया जाए तब हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा, तब हम हॉरिजॉन्टल को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे. लेकिन ऐसा बीम में कभी होता नहीं है. नेचुरल लोड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. स्पेशल केस में अगर रोप से अगर बांध के खींचा जा रहा है तो उस केस में तो दूसरी बात है. अदरवाइज नॉर्मली इन बीम all loads are transferred and that's why horizontal force are not considered. So 2 unknowns here, 1 unknowns here, 1 unknown here, 1 unknown here. How many unknowns are there? Total 5 unknowns are there. Total 5 numbers of unknowns there. But we know equilibrium equation is only 3. So 3 more equation, 2. So it means 3 more equations, additional equation we need. But in case of displacement method, we are not considering the forces. We are not considering the forces. We are considering the degree of freedom. We are considering the degree of freedom. In consistent deformation method, forces were considered. Forces were considered. How many extra forces we have to calculate? Here, how many degree of freedom we have to calculate? How many degree of freedom we have to calculate? So how many degree of freedom will be there? 0 degree of freedom here, 1 degree of freedom, and कौन सी? ये वाली क्या? Rotational. Here rotational and here rotational. Suppose this it has कौन सी होगी? थीटा बी, और ये रोटेशन सपोज थीटा सी एंड सपोज थीटा डी. Suppose theta d. So this beam has total kinematic indeterminacy of which degree? 3, है ना. And what are those degrees of freedom? Theta b, theta c and theta d. Clear? Clear? तो पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में. फोर्स मेथड में हमें क्या करना होता था, कंसर्न क्या होता था? नंबर ऑफ फोर्सेस. What are the, how many number of forces are extra, and the extra forces were treated as redundant. Extra forces were treated as redundant. But here degrees of freedom. Clear? So if we are talking about fixed in moment, if we are talking about fixed in moment, so this segment, entire segment which has the degree of freedom at joint B, at joint C, at joint D, all degree of freedom has to be removed. All degrees of freedom has to be removed. How it will possible? कैसे होगा possible? कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं? How it will possible? We have to make this hinge as fixed. We have to make this hinge as fixed. Similarly, at point B, at point C, we have to make this as fixed. We have to make this fixed also. And prior to that, we know that this beam may deflect in this sum. This beam may deflect in this form. Deflected shape may have of this shape.
and the value of theta b can be represented in this manner. This one value क्या होगी ये थीटा बी एंड दिस वैल्यू थीटा बी, यही तो होगा भाई. लोड आएगा, लोड की वजह से क्या होगा, सैगिंग आएगी, यहां पर भी सैगिंग, यहां पर भी सैगिंग, तीनों पार्ट में सैगिंग आएगी. लेकिन यहां पे क्या होगा, कार्नर्स पे ये. व्हाट अबाउट एट पॉइंट बी, बी पे क्या होगा, आप देखोगे कुछ पार्ट जो है ना वहां पे हॉगिंग नेचर आ जाएगा, कुछ पार्ट में हॉगिंग नेचर आ जाएगा. ऐसा भी हो सकता है एट पॉइंट बी ऐसा भी हो सकता है. बी पॉइंट ये है, इफ सपोज दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, तो ये ऐसे भी हो सकता है. इट में पॉसिबल, ऐसे भी हो सकता है. डिफ्लेक्टेड शेप में है दिस शेप आल्सो, नहीं हो सकता. अब जैसे पूरा ही बना देता हूं मैं, ऐसे भी हो सकता है. ऐसे ये मैंने गलत बनाया. हियर इट विल हैव दिस शेप, नो डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर, गलत बनाया था मैंने. तो ऐसे हो सकता है यहां पे, ये पार्ट ऐसे. एट दिस पार्ट सम पार्ट में भी क्लियर बेटा. और इसी तरीके से सी का भी, सी का अगर मैं बनाऊं तो ये सी पार्ट अगर ये ऐसे है, सो इट मे हैव डिफ्लेक्टेड शेप में हैव इन दिस शेप पॉइंट. क्लियर. सो दिस पार्ट, ये क्या हो रहा है, पार्ट उठना है क्या ऊपर, बी पार्ट विल ट्राई टू मूव अपवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली एट पॉइंट सी, this part, this amount may cause the motion of upward direction, and you know very well, due to that tendency of moving this joint in upward direction, a reaction has been produced. VB क्यों प्रोड्यूस होती है, कभी आपका दिमाग गया क्यों प्रोड्यूस होती है, यही इसको रोकने के लिए, किसी को रोकने के लिए. ऊपर हो सकता है, किसी में नीचे भी हो सकता है. ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया हुआ है, इट में अपवर्ड, इट में भी डाउनवर्ड. इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड. W कितना है, P कितना है और ये कितना है, इस पर डिपेंड करेगा. इट में सपोज W0 नॉट, इस पर डिपेंड करेगा. बट होगा कुछ ऐसा ही, होगा कुछ ऐसा ही. सो इफ यू वांट टू make all degree of freedom as 0 at point B and C and D, then we will have this type of thing. We will have this type of thing. We will have this type of. क्या किया मैंने, this is joint B, this is joint C, this is joint A, this is joint D. A joint पे हमने कुछ चेंज किया क्या, पहले से ऐसा था. बी पे किया है, क्या किया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ये थी थीटा बी थी, उसको हमने खत्म कर दिया. इस पे क्या किया, इस पे भी किया है वही चीज, इस पे भी वही चीज किया है. अब ये जो थीटा डी, ये जो आ रहा था थीटा डी, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी 0. क्लियर. अब अगर इसका हम डिफ्लेक्टेड शेप देखेंगे तो क्या होगा, नाउ द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ दिस विल बी, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या. आफ्टर डूइंग दिस द डिफ्लेक्टेड शेप विल लाइक दिस, होगा नहीं होगा. इज इट क्लियर. इसी तरीके से इसका व्हाट विल बी द डिफ्लेक्टेड शेप, इट मे हैव दिस शेप. सिमिलरली दिस मे हैव दिस, एंड द लोड विल एक्ट इन द सेम मैनर एज इन गिवन बीम. लोड जैसा लग रहा था वैसा ही, लोड विल नॉट बी चेंज. डिफ्लेक्टेड शेप जो ऐसे था, अब वो कुछ ऐसा हो जाएगा, बदल जाएगा. क्लियर. नाउ सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट सी डी, will be treated as single unit, will be treated as single unit. और एक चीज और, यहां पे कुछ चीज होगा क्या
at point B and point C at point D. If we remove the degree of freedom, then क्या होगा यहाँ पे? मोमेंट जनरेट होगा, there will be मोमेंट. तो मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, दिस वन मोमेंट. इसी तरीके से यहां पर ये पार्ट आपने देखा होगा. मैंने क्या किया है यहाँ पे? सारे क्लॉकवाइज लिए मैंने. मोमेंट्स हियर, मोमेंट्स आर कंसिडर्ड एज क्लॉकवाइज. यहाँ पे देखो क्या है, क्लॉकवाइज है क्या? एट पॉइंट बी पॉइंट पे इधर देखो, इस वाले पार्ट के लिए, बीसी सेगमेंट के लिए देखो क्या है, क्लॉकवाइज. यहाँ पे आ जाओ, ये सीबी पार्ट देखो, सीबी पार्ट में कैसा है? क्लॉकवाइज. सीडी पार्ट ले लो, सीडी पार्ट में भी क्या है? क्लॉकवाइज है क्या? डी में आ जाओ, व्हाट इज द साइन? क्लॉकवाइज. सिमिलरली ए पे भी क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर देयर. हमें यही कैलकुलेट करना है. वी वांट टू कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट ऑल दिस थ्री. और मैंने सिंबल बताया था आपको, ये मोमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम एफ ए बी. एंड दिस मोमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एम एफ बी ए. दिस वन मोमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एम एफ बी सी. दिस वन मोमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एम एफ सी बी. दिस वन एम एफ सी डी. एंड दिस वन एम एफ, which one? So these are the fixed end moments. These are the fixed end moment. Yes. अभी हम समझ में आ जाएगा. ये तो हमने एक नोटेशंस में फॉलो किया. फिक्स्ड एंड मोमेंट हम सारे डिस्प्लेसमेंट में क्लॉकवाइज मोमेंट को ही हम पास टू लेते हैं. ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट को पास टू लेते हैं. कहीं पर भी निगेटिव चीज है, इसका मतलब आप समझेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज. अभी देखिएगा MFAB, इट विल हैव माइनस साइन. बता दूंगा मैं, माइनस साइन अगर आ गया, कैलकुलेट करने पे अगर माइनस साइन आया, इफ द वैल्यू ऑफ MFAB इज माइनस साइन, व्हाट इट्स मीनिंग? इट विल नॉट एक्ट इन दिस डायरेक्शन, इट विल एक्ट अपवर्ड. ओके, कैलकुलेट करने पे अभी खुद ही आ जाएगा. हमने एज्यूम किया है कि ये डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, ऑल हमेशा आप याद रखिएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट्स, इसमें क्लॉकवाइज बोथ रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन एज वेल एंड मोमेंट्स, दे आर टेकन एज पॉजिटिव. हमेशा नोट करके कहीं लिख लीजिएगा. हमेशा क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव. If we are getting negative, what it mean? Moments are anti-clockwise. इसी तरीके से थीटा का भी, रोटेशन भी अगर माइनस आ रहा है तो कैसा होगा वो? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. क्लियर? यहाँ पे रोटेशन कैसा है? वैसे यहाँ पे देखो, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज. अगर वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्लॉकवाइज. क्लियर? So the next thing is, we will calculate fixed end moment for AB. Fixed end moment for AB. इस पार्ट के लिए, AB के लिए. So our AB part of the beam, ये है क्या? दिस वन L एंड EI, यही है क्या? दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, यही है. एंड वी नो वेरी वेल दैट दिस विल हैव दिस शेप ऑफ डिफॉर्मेशन. 0 degree of freedom here, 0 degree of freedom there. Any doubt?
डाउट पूछो ना। यस है क्या बेटा? पॉजिटिव लेके नहीं, पॉजिटिव लेके नहीं, एक, ठीक है ना, वर्ड वाइड निगेटिव होता है, वर्ड वाइड, आप चेंज नहीं करेंगे उसे। क्लॉकवाइज हमने लिखा तो पॉजिटिव है ना, हमेशा हर जगह पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, हर बुक में, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, हर बुक पॉजिटिव लेती है, इसमें आपको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज, ठीक है ना। सो क्या निकालना है हमें इसमें? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? केवल अब उसको छोड़ो, केवल अब इसकी बात करो। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 4। कौन कौन से? वर्टिकल मोमेंट, वर्टिकल मोमेंट, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ अननोन्स 4, टोटल अननोन्स is equal to 4. Equilibrium equations equals to 2. So degree of static independency how much? 4 minus 2 equals to 2. अभी आप इसको छोड़ो, अभी कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हम लोग किए है ना, हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स, कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स। हमेशा ऐसे ही मोमेंट्स आता है, अगर लोड लग रहा है तो सैग करेगा, जब सैग करेगा तो क्या होगा? ये नीचे का मोमेंट रोक रहा है ना। लिसन, ये इस डायरेक्शन में क्यों होगा मैं बता दूं आपको। वो इस डायरेक्शन में इसलिए होगा क्योंकि अगर यहाँ पे हिंज होता तो इस तरीके का मोमेंट होता, ये इस तरीके का डिफ्लेक्टेड शेप होता। यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप, रोटेशन क्या है? 0, दिस इज 0 रोटेशन। अब इसी को क्या कर रहा है? ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? टू स्टॉप दिस रोटेशन, इस रोटेशन को 0 करने के लिए। तो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इधर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ये वाली वैल्यू निगेटिव लिखी जाएगी। अब देखिएगा अभी, इट विल बी -WL²/12। कैलकुलेट करने पे खुद ही निकलेगी। इस वाले में क्या निकलेगा? +WL²/12। ये वाली वैल्यू भी +WL²/12 आएगी। क्लियर? सही चीज नहीं है। सो if we are taking this value MA as x1, MB as x2, redundant मान लें, तो इसको हम निकाल सकते हो क्या? x1 x2 निकाल सकते हो? उसको निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाए और फिर 1 by 1 क्या करें? यूनिट लोड लगाएं और डिफ्लेक्शन वगैरह कैलकुलेट करें। ठीक है, चलो करें। So the primary shape, primary structure for this will be taking x1 as M1, MA, x2 as MB. We will have this shape, and it will have deflection shape in this manner. So the value of D1 क्या होगी? यही होगी क्या? दिस विल बी D1 D2 रोटेशन। क्लियर? प्लस क्या करना होगा? यूनिट लोड 1 by 1। सो यहाँ पे दिस इज हेंस, सो वी विल अप्लाई यूनिट लोड एंड ड्यू टू दिस यूनिट मोमेंट इट विल डिफ्लेक्ट इन दिस मैनर। और दिस वन किससे डेजिग्नेट करेंगे? del 11 या इसको हम कहें F11 फ्लेक्सिबिलिटी में। ओके, और ये वाली वैल्यू क्या करेंगे? इसको F21। क्लियर? प्लस और क्या करना है? आप कहाँ पे लगाएं? B पे लगाएं। It will deflect in this form. This value
F12 और ये F, और मैक्सवेल से हमें कुछ मालूम है क्या? क्या मालूम है? F12 इक्वल्स टू F, ये हमें मालूम ही है। So we will calculate D1, D2, F1, F11, F21, F12 and F22. Then we will make the compatibility equation and we will calculate value of x1 and x2. And that value of x1 and x2 क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे क्या? फिक्स्ड इन मोमेंट. That is our object. That is our object. और जो रिजल्ट होगा उसको हम याद रखेंगे. जो रिजल्ट होगा उसको हम याद रखेंगे. क्लियर? रिजल्ट हमें मालूम है, आपको पता होगा, WL स्क्वायर बाई 12 आएगा. ABW स्क्वायर बाई 12 आएगा, पॉजिटिव साइन में ABW स्क्वायर बाई 12 आएगा. क्लियर? तो अब मुझे बताओ FAB की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? माइनस WL स्क्वायर बाई 12. वाई माइनस? क्योंकि यहां पे फिक्स्ड इन मोमेंट में क्लॉकवाइज लिया जाता है, जबकि एक्चुअल में क्या होगा? क्लियर? सो अब इसकी वैल्यू निकाल लें. कैलकुलेशन फॉर D1 एंड D2 निकालो. सो हमें क्या बनाना पड़ेगा? वी हैव टू मेक कैपिटल एम डायग्राम, स्मॉल एम डायग्राम. फटाफट बना लेते हैं, मालूम ही है हमें. सो मेक दैट डायग्राम. So it will have the bending moment in this form. Ordinate WL square by ATI. It will be what? M by EI diagram. It will M by EI diagram. अब small m diagram for किसके लिए? D1 and it will have, क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट मोमेंट कहां लगाना पड़ेगा? ए पॉइंट पे, मींस हियर. ठीक है? तो रिएक्शन क्या होगी? अपवर्ड. और यहां पे क्या होगी? डाउनवर्ड. वैल्यू बताओ जरा, कितना होगा ये रिएक्शन की वैल्यू बताओ. ये वाली बताओ कितना होगा? 1 माइनस 0 डिवाइड बाई एल. बताया था नहीं बताया था? डिफरेंस ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाई एल. सो 1 बाई एल, 1 बाई एल, K1 बाई एल. तो मोमेंट क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट. इट विल हैव निगेटिव ऑर्डिनेट और ये पॉजिटिव थी एंड दिस वैल्यू इज 1. वी नो वेरी वेल. तो ये डायग्राम हो गया किसके लिए? स्मॉल एम फॉर D1. सिमिलरली वी हैव टू मेक अनदर डायग्राम, स्मॉल एम डायग्राम फॉर किसके लिए? स्मॉल एम डायग्राम फॉर D2. एंड फॉर D2 वी हैव टू अप्लाई यूनिट मोमेंट at point B. So at point B this reaction will be 1 by L. This will also downward 1 by L. You know very well. And the bending moment shape will be this. And अब क्या D1 D2 हम लिख सकते हैं क्या? वैल्यू ऑफ D1, वैल्यू ऑफ D2 कितना होगा? दिस इज पैराबोला, दिस इज ट्राइंगल. कितनी वैल्यू है? 1/3 LAC. यू नो वेरी वेल. इट इज 1/3 LAC. सो राइट एंड टेल मी, दोनों बराबर होंगी क्या? 1/3 LAC. बोथ हैज द सेम ऑर्डिनेट, सेम पीक. LAC वैल्यू इज सेम फॉर बोथ, तो इट विल हैव सेम वैल्यू. और होगी भी यहां पे, देखो दिख रहा था क्या? सिमेट्री, फ्रॉम सिमेट्री D1 D2 वैल्यू विल बी सेम. और यहां पे निकल भी रहा है. क्लियर? कितनी वैल्यू आई? 1/3 वैल्यू ऑफ L. L इज L. A इज व्हाट? WL स्क्वायर बाई ATI into C वैल्यू इज 1. सो दिस एंड द प्रोडक्ट विल बी ऑफ किसका साइन? माइनस क्या? Because this is plus, this is minus. So it will have
of minus sign. So finally we will have minus WL to power 4. 4 or 3? 3. Divide by how much? 4EI. And we will get the same value, means minus WL cube by 24EI. Clear? क्लियर? तो ये वाला पार्ट हो गया. अब क्या करना है हमें? ये वाला कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. So next the calculations are F11 and F21. अब हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं क्या? यही तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स यही तो होता है. तो आज का जो काम है हमारा पूरा रिवीजन ही हो रहा है, लेकिन ये जो रिवीजन है डिस्प्लेसमेंट मेथड का बेसिस है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे की चीजें याद रखने वाली चीजें हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी याद रखा जाए. ठीक है ना? ये वाली चीज लोग याद रखते हैं, WL क्यूब बाई 24EI याद रखने की जरूरत है क्या? कितना समय लगेगा इसको कैलकुलेट करने में बताओ? 2 मिनट या विद इन 1 मिनट यू कैन कैलकुलेट. आपको बनाने की जरूरत थोड़ी है, रफ डायग्राम में आप उसको बनाओ और निकालो. क्लियर? तो याद, कोई फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. और फार्मूले अगर याद करने शुरू कर दिए, हैबिट बना लिया, तो बेटा फार्मूले इतने सारे हो जाएंगे कि लास्ट मोमेंट में यू विल नॉट एबल टू पिक द करेक्ट फार्मूला. क्लियर? सो make capital M diagram and small m diagram. We will have to make capital M by EI diagram and small m diagram for F11, और ये हो जाएगा F21 के लिए. And value of F11, F21. डायग्राम बनाएं और मुझे वैल्यू बताएं. L/3I, ये वाली L/3I माइनस प्लस ना, तो ये आई प्लस L/3EI, और ये वाली आ गई प्लस L/6EI. दीज आर द करेक्ट वैल्यू. करेक्ट वैल्यू कितने लोगों का आया? और भी लोगों का आना चाहिए. दीज आर द करेक्ट वैल्यूज. जो लोग नहीं कर पाए हैं फिर से यहाँ पे देख लें, मौका है उनके लिए समझने का. जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए मौका है, समझ लें, लेकिन आगे से खुद भी करें. आगे से खुद भी करें. कैपिटल M बाई EI डायग्राम कैसे बना होगा? कैसे बनेगा? ये डायग्राम को पिक करना पड़ेगा. वी हैव टू पिक दैट डायग्राम. क्या है इसमें? मोमेंट लगा हुआ है, दिस वन, दिस इज डायग्राम. इसका बेंडिंग मोमेंट अभी प्लॉट कर चुके हैं. कैसा प्लॉट किए थे? यही था क्या? दिस वन 1, तो ये 1 बाई EI, ये क्या हो गया? M बाई कैपिटल M बाई EI. वेरी सिंपल. अभी किया हमने. स्मॉल m डायग्राम बनाना है. क्या करना पड़ेगा? मोमेंट कहां पे लगाना पड़ेगा? यहां पे. सेम डायग्राम आ गया. सेम डायग्राम है तो क्या दिक्कत है? दिस विल बी 1. ये हो गया. ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. बोथ विल हैव नेगेटिव साइन. और इसका मैं मालूम है कितना हुआ? 1/3 LSE हुआ क्या? तो 1/3 LSE की वैल्यू यही आएगी. क्लियर? इसी तरीके से इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोमेंट कहां पे लगेगा? यहां पे. और इसके लिए बेंडिंग मोमेंट बनाया ये भी हमने, ये 1 है, तो इसके लिए क्या है? 1/6 LSE, तो इसका हाफ हो गया. क्लियर? तो इस तरीके से हमने F11, F21 कैलकुलेट किया, और हमें मालूम है कि यही वैल्यू क्या होगी? F12. तो हमें दिस वन एंड दिस वन वी हैव कैलकुलेटेड. क्या बचा हुआ है? F22.
So we have to make calculation for F22. F22. तो कैपिटल M by EI डायग्राम और स्मॉल m डायग्राम फॉर F22. दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, बना लो और वैल्यू बताओ मुझे. L by 3i, करेक्ट. L by 3 will be, L by 3i will be is the correct answer. So क्या करना होगा? M by EI डायग्राम कैसे बनेगा? This one diagram will be picked up. So this and this moment is acting here. तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना ही चुके हैं. This one diagram and ordinate will have 1 by EI with negative this one. और इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका भी सेम हो जाएगा क्या? It will have same 1 माइनस और कितना है 1 by 3 LSC क्या माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस तो 1 by 3 इंटू L इज 1 by EI इंटू 1 और L लगाना भूल गए तो ये हो गया कि L अपॉन 3i L by 3i. After having this result, we can apply the compatibility equation at point A, at point B. This is our next step. This is our next step of किसका? किस मेथड? अप्रोच का, फोर्स मेथड का. यह है फोर्स मेथड. क्लियर? तो अप्लाई compatibility equation at A and B. Apply compatibility equation at A and B. So at A पे कितना हो जाएगा? D1 कितना लिखेंगे? D1 प्लस F11 मल्टीप्लाई बाई X1 प्लस F12 मल्टीप्लाई बाई X2 इक्वल्स टू हाउ मच? क्या है यहाँ पे? 0. इसी तरीके से यहाँ पे B पे क्या हो जाएगा? D2 प्लस F21 मल्टीप्लाई बाई X1 प्लस F22 मल्टीप्लाई बाई X2 इक्वल्स टू B. यहाँ पे आ जाओ 0. तो राइट इट. मैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना. आई एम राइटिंग द डायरेक्ट वैल्यू. D1 D2 कितना आया था? लिखा हमने कहीं? बिगाड़ इरेज कर दिया? कोई नहीं. D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू आया था माइनस WL क्यूब बाई 48 24 ना 48 24 ही आई. मैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ. सो इट इज माइनस WL क्यूब बाई 24 ही आई प्लस F11 L by 3i L by 3ei मल्टीप्लाई बाई X1 प्लस L by 6ei मल्टीप्लाई बाई X2 इक्वल्स टू 0. क्लियर? अब क्या करो? आप एक काम करो, 24ei से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो और L से भी डिवाइड कर दो. सो यू विल गेट माइनस WL स्क्वायर और उसको उधर ले जाओ. तो यहाँ पे हो गया ये WL स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 8x1 क्या प्लस 4x2. इज इट करेक्ट? यही बचेगा. तो राइट इज इक्वेशन नंबर 1. राइट इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. यू नो वेरी वेल. दिस इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. And another compatibility equation can be written at which point? At point B. ये कहाँ पे लिखा हुआ है? A पे है ये. This is at point A. You can also write the next compatibility equation at point B. लिखें आप इसको. So at point B ये तो A के लिए हो गया. B के लिए कितना हो जाएगा? Value is same. तो माइनस WL क्यूब बाई 24ei प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है? F21 कितनी है? दिस वन L by 6ei इंटू X1 प्लस दिस वन वैल्यू F22 L by 3i
3i वैल्यू ऑफ x2 कम्स टू बी 0। क्या बन गया यहाँ पे, ये उधर चला गया, 4x1 प्लस 8x2 इक्वल्स टू WL स्क्वायर बाई, बस इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। एंड वी कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। कितना आया, WL स्क्वायर बाई 12। पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव आया। सो वी हैव वैल्यू ऑफ, आफ्टर सॉल्विंग दिस, वैल्यू ऑफ x1 and x2 both are same and both have WL square by 12. These are the results. These are the results. These are the results. इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमने एज्यूम डायरेक्शन लिया था, ये सारी क्या थी, ये डायरेक्शन क्या थी, these were the assumed directions. These were the assumed direction. For x1 this was the assumed direction, for x2 this was the assumed direction, and after calculation we are getting positive values. It means assumed directions are absolutely correct, absolutely correct. So we can write equals to we can write x1 equals to ma equals to WL square by 12, and here we can write as x2 equals to mb equals to WL square by 12. Clear? Therefore ये वैल्यू क्या हो जाएगी, MFA भी क्या हो जाएगी, यू राइट इट। अब मुझे बताओ क्या लिखा जाए, माइनस WL स्क्वायर बाई 12, और इसको क्या लिखा जाए, WL स्क्वायर बाई, दैट आई वांट टू टेल यू, दैट आई वांट टू टेल यू। और यह आपको हमेशा याद रखना है, यह आपको याद रखना है, WL स्क्वायर बाई 12। इफ ए बीम सेगमेंट, if a beam segment is carrying UDL, if beam segment is carrying UDL, then it will have fixed in moment value as WL square by 12. क्लियर। अब इसके लिए आते हैं, हमारा नेक्स्ट काम किसके लिए है, इसके फॉर पॉइंट लो, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट वी हैव टू रिमेंबर। तो करें फिक्स्ड, नाउ द फिक्स्ड इन मोमेंट फॉर किसके लिए, फॉर BC। बाकी आगे हमें कोई जरूरत नहीं, रिएक्शन वगैरह की जरूरत थी क्या, नहीं थी, हमें तो केवल मोमेंट की जरूरत थी, तो मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, दैट्स इट। we are required only for moments। तो पॉइंट लोड के लिए कर पाएंगे क्या, सेम काम है, ठीक है ना, सेम काम हमें पॉइंट लोड के लिए भी करें। मैं रिजल्ट्स देना चाहता हूं एक्चुअली, 2 का दे दूंगा, बाकी इसका मैं लिखा दूंगा कि आप लोग करिएगा इसका और इसका, यही ज्यादा यूज होता है। क्लियर। तो बनाओ फॉर BC, एंड मोमेंट फॉर BC। फॉर BC बीम हमारी ये है क्या, ये है क्या बीम, यही है बीम। सो इसका भी हम वही काम करते हैं, सेम x1 MA एज टेक MA एज x1, टेक MB एज x2, then we will have primary structure of this type, we will have primary structure of this type P, then कितना हो जाएगा ऑर्डिनेट, M/EI डायग्राम के लिए नहीं, अभी छोड़ो, ये तो हम कैलकुलेट नहीं करते ना। यहाँ पे दिस इज आवर D1, दिस इज आवर D2, प्लस प्लस क्या काम करेंगे, यूनिट लोड, यहाँ पे 1,
So it will have in this deflected shape in this manner. Then this value will be f11. This value will be f कौन सा 21 प्लस नीचे वाला सेम आएगा क्या? सेम आएगा. This one will be for x1 equals to 1. This one will be for x2 equals to 1. अब मुझे आप इसमें ये बताओ, टेल मी वैल्यू ऑफ f11, वैल्यू ऑफ f21, वैल्यू ऑफ f12, वैल्यू ऑफ f22 वही होगी या अलग होगी? पहले वाले में अलग होगी या सेम होगी? बेटा ठीक से बैठ. सेम होगी या अलग होगी? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स. सभी ध्यान से सुने बेटा, इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को हमेशा दिक्कत करता रहता है. मैं क्वेश्चन के थ्रू ही सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि थ्योरी आपके दिमाग में एक साथ नहीं बैठाल पाओगे. सब कुछ मैं सामने रख दे रहा हूं, मैं खोल के रख दे रहा हूं. मैं मेरा क्वेश्चन है आपसे, आई एम आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन, वेदर फॉर दिस केस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स will be same or different from our previous question. Why same? Because we are getting the same structure. We are getting the same structure. That's why we will have same value of deflections. कैपिटल एम यहाँ पे चेंज होगा, किसकी वजह से चेंज होगा? D1 D2 की वजह से. D1 and D2 will not be same. It will be different. It depends upon load. पॉइंट लोड है, यहां से A डिस्टेंस, यहां से B डिस्टेंस. वैल्यू ऑफ D1 D2 विल बी डिफरेंट, बट द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स विल रिमेन सेम. और मैं आपको बताया था फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जब करा रहा था मैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर. इट इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल लोड. इट इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल लोड. फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डज नॉट डिपेंड, नेवर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द लोड. चाहे पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, ट्रायंगुलर हो, यूवीएल हो, कपल हो, कैसा भी हो. इट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल लोडिंग. क्लियर टू एवरीबॉडी? इट इज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज फ्री फ्रॉम किससे? एक्सटर्नल लोडिंग. और मैंने शायद यूनिट टेस्ट में एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, लोड उसमें दिया था क्या? मैंने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनवाई थी, लोड था ही नहीं वहां पर. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स वी डू नॉट नीड एनी लोड. लोड कोई भी हो वही होगी वैल्यू. क्लियर? तो हमें इसमें क्या करना क्या होगा? केवल D1 D2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और बाकी सारे रिजल्ट तो हाई है. जो ये कैलकुलेट किया हुआ है ये सब क्या होंगे? इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे. क्लियर? वैसे ही कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे और क्या कर लेंगे? x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेंगे. बस दिस इज आवर वर्क. This is our work to calculate the value of fixed end moment for this case, for point load. Clear? Is it clear to everybody? Yes. Proceed on. तो नेक्स्ट क्या करें? कैलकुलेशन फॉर D1 and calculation for D1 and D2. We have to make capital M by E diagram and small m by E diagram. We have to make these two diagrams. We have to make these two diagrams. बना सकते हैं आप? बनाइए. So capital M diagram for D1 and D2 both. क्या होगा? Simply supported beam with point load, A distance, B distance, and it will have the ordinate of bending moment. How much ordinate will have? कितनी होगी ये? P into AB by L और डिवाइड by EI. तो इसको EIL करें क्या? PAB by EIL. It will be the ordinate for M by EI.
क्लियर? स्मॉल एम डायग्राम, स्मॉल एम डायग्राम फॉर D1, स्मॉल एम डायग्राम फॉर D1। क्या करेंगे? मोमेंट कहाँ पे लगाएं? यहाँ पे दिस, इसको हम पहले बना ही चुके हैं, तो इट विल हैव दिस। क्लियर? स्मॉल एम फॉर D2। कहाँ पे लगाना है मोमेंट? यहाँ पे। और इसका भी बना चुके हैं। ये है क्या? दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। बस को यही डिफरेंट है। ये वाला भी सेम था क्या? ये वाला भी सेम है क्या? बस यही चीज सब दिमाग में बैठा ली, कौन सेम होगा, कौन डिफरेंट होगा और कैसे कैलकुलेट होगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। यही सब चीजें जो है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? निकाल लो, निकाल ही सकते हो। कितना होगा ये? कैसे निकालोगे? ये ऑर्डिनेट चाहिए क्या आपको? ये ऑर्डिनेट चाहिए क्या? निकाल सकते हो। ये कितनी होगी? ये होगी, ये रिएक्शन कितना हुआ? ये 1/L, और ये डिस्टेंस B है, ये A है, तो ये B/L हुआ क्या? दिस इज B/L। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये यहाँ पे दिस वन इज 1/L, दिस डिस्टेंस इज A, तो ये A/L, दिस ऑर्डिनेट इज A/L। थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म इसमें आएगा, वो हम आता ही काम करना। ठीक है? सो वैल्यू ऑफ D1, वैल्यू ऑफ D1 क्या करें हम? ट्रापेजॉइड एंड ट्रायंगुलर, ट्रापेजॉइड ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इधर का तो 1/3 LSE सिंपल हो गया, लेकिन इसमें ये वाला L/6 वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। लगा लो, लगाना हमें आता ही है। L/6 मीन्स क्या? A/6। अच्छा माइनस तो होगा, ये तो हमें मालूम ही है। दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस, तो वैल्यू आएगी माइनस में, तो D1 विल बी माइनस, और A/6 कौन सी ऑर्डिनेट लिए जाए? दिस वन है ना, PAB बाई EIL, एंड इसके नीचे की ऑर्डिनेट कितनी है? ऑर्डिनेट अंडर दिस लोड B/L, तो डबल टाइम्स 2B/L। क्लियर? प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और आगे 0 होगा क्या? दिस वन ऑर्डिनेट इज 0, तो नो नीड टू राइट अनदर, सो दिस वन। क्लियर? ये किसका हो गया? इसका हुआ। इस वाले का क्या होगा? 1/3 LSE, सो प्लस 1/3 L इज व्हाट? B, तो B/3, एंड PA/L EIL, और ये 1, सो ये हो जाएगा PAB by EIL, this one, and it will have also with negative sign. Clear? Into yes into मैं नीचे लिख देता हूं, माइनस कितना आया? 1/3 मीन्स B/3 इंटू PAB बाई EIL, ये हो गया L 1/3 LA हो गई, और C हो गया, नहीं इसमें भी ट्रापेजॉइड है बेटा, इसमें भी तो ट्रापेजॉइड है। ओके, सो अच्छा ये राइट, तो ठीक था ना, माइनस 1/B/3 PAB बाई EIL इंटू B/L, ये कह रहे थे आप। ठीक है, तो कॉमन वाली चीज कॉमन ले लो और अंदर का फैक्टर लिख लो। क्या कॉमन है? PAB बाई क्या कॉमन आ रहा है? 3EIL², 3EIL
एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और माइनस के भी बाहर ले लो, माइनस भी बाहर ले लो। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 3 है, तो डिवाइड बाई इसको 6 ले लें क्या बाहर? 6 ले लें, ठीक है। सो ये एल स्क्वायर लें या केवल एल लें? केवल एल लेना चाहिए। सो कितना आएगा? ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 2b बाई एल प्लस 1 ये इधर का हुआ, और इधर कितना हुआ? प्लस कितना? 2b स्क्वायर, क्या 2b स्क्वायर बाई एल ना, ये हुआ, ये आया। सो ये तो आपने बनाई हुआ है, इसको रेज कर देता हूं मैं। सो वैल्यू ऑफ d1 इक्वल्स टू माइनस PAB डिवाइड बाई 6CIL, और इधर अंदर क्या बचा जरा देख लो। ये L जरा कॉमन लेके यहां पे ले आते हैं, L स्क्वायर। सो ये हो गया A इंटू L और 2B अपॉन L प्लस 1 प्लस 2B स्क्वायर, ये आया। नाउ द फैक्टर इज AL गया 2AB प्लस A इंटू L प्लस 2B स्क्वायर, फर्दर हुआ ये 2AB प्लस L इज व्हाट? A प्लस B, AB के फॉर्म पे लिख लो, प्लस 2B स्क्वायर, फर्दर हुआ कितना? सो ये आया A स्क्वायर एंड प्लस 2B स्क्वायर और प्लस 3AB, यही हुआ क्या? माइनस PAB डिवाइड बाई 6CIL स्क्वायर, यही हुआ क्या? चेक इट आउट, इज इट करेक्ट? वैल्यू ऑफ d1 इज करेक्ट और रॉन्ग? चेक इट आउट। इज इट करेक्ट वैल्यू? देखो चेक, करेक्ट। सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d2, similarly calculate value of d2, similarly d2 will be, d2 में आप थोड़ा सा बुद्धिमानी वाला काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यस, a की जगह b है, d2 के लिए a की जगह b है क्या? तो क्या जरूरत है सारा कुछ लिखने की, है क्या? यहीं पे सीधा लिखो d2 वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस PAB में तो चाहे BA लिखो चाहे AB लिखो, व्हाट मीनिंग? डिवाइड बाई 6CIL स्क्वायर, B स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो मैं इसको पहले लिखता हूँ 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये 3AB, सीधा आ गया। ये हमें टाइम सेव करना है, गधों की जैसे इसको करने नहीं लगना है, बेवकूफ़ों के जैसे, हमने ना कि फिर से यही सब चीज़ कर रहे हैं, क्या फ़ायदा वही चीज़। टाइम को हमें बचाना है, और इसके बाद का काम आपको मालूम ही है। इसके बाद का काम यही है क्या? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, इसलिए इसको मैंने इरेज नहीं किया था। F1 फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स तो सेम है। इसके बाद का काम मालूम ही है आपको, क्या मालूम है? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाना है, अप्लाई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एट A एंड B, सेम चीज करनी है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे, बस यही वाली वैल्यू बदलेगी क्या? इसमें केवल ये वाली वैल्यू चेंज होगी, दिस वन इट विल बी सेम। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं? इसकी जगह पे लिखूं मैं माइनस PAB बाई, इसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा
माइनस PAB बाई 6CI L स्क्वायर, और ये लिखना पड़ेगा 2A स्क्वायर, हाँ 2 ये A स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 3AB प्लस दिस वन। सो वैल्यू ऑफ, अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें? 6 से, है ना। सो ऐसा करते हैं, इसको 6CI से मल्टीप्लाई करो। सो इसको ऐसा करें क्या, 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू, ऐसा करें। क्या किया हमने, L बाई 6CI से नहीं, 6CI डिवाइड बाई L से मल्टीप्लाई कर दो, 6CI डिवाइड बाई L से मल्टीप्लाई कर दो और उसको उधर ले जाओ। क्या मिल जाएगा हमें, PAB बाई L क्यूब, क्या L क्यूब, और इस ब्रैकेट में क्या हुआ, A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 3AB। यही होगा क्या, यही होगा, सही है। सिमिलरली ये कहां पे था, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहां पे लगाई थी, A पॉइंट पे। सेम काम B पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं क्या, लगाओ, करो, कर सकते हैं। तो सिमिलर वर्क कैन आल्सो बी अप्लाइड। कुछ गलत हो गया, क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं पाया मैं। x1 अगले के लिए, हाँ तो उसमें क्या हो जाएगा, इसी को देख के लिख लो, है ना, वही है ना, A B से रिप्लेस हो रहा है बस, और कुछ थोड़ी हो रहा है। सो सिमिलरली यहां पे लिख लेना, सिमिलरली फार पॉइंट किसके लिए, B, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा प्लस 2x1, ये 2x, इधर का ये चेंज होगा, यही तो होगा, ये x1 हो जाएगा, ये 2x2 हो जाएगा, इक्वल्स टू A की जगह पे B। क्लियर। सो PAB बाई L क्यूब अंदर हो गया ये वाला 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 3AB, यही क्या, यही क्या। अब x1 x2 की वैल्यू मुझे निकाल के बता दोगे क्या, तो बता दो। टेल मी द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, टेल मी द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। कितना आया, PB स्क्वायर A बाई L स्क्वायर, बेटा L क्यूब नहीं, L स्क्वायर आ रहा है ना, L क्यूब नहीं होगा, L स्क्वायर होगा, नहीं तो गलत हो रहा है कहीं से, L स्क्वायर आएगा। आया, चेक इट आउट। चेक कर लो, क्या करना भैया, इसकी x2 की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, काम खत्म हो गया। इसकी x2 की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, x1 की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं कर देता हूं इधर, देखो चलो इधर देखो, इससे x2 की वैल्यू कितनी आई, दिस वन माइनस दिस वन, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो x1 प्लस
2 टाइम्स हाफ, 2 टाइम्स हाफ। x2 की वैल्यू यहां से देखो कितनी हुई, पी ए बी बाई एल क्यूब ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2x कितना 1। ये हुआ किसकी वैल्यू, x2 की वैल्यू इक्वल्स टू पी ए बी बाई एल क्यूब और इधर हुआ ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3ab। यस यस यस, कहाँ पे, ये वाला, क्यों क्यों, अच्छा किसमें, इसमें रख रहे हैं क्या, यस यस यस, क्लियर, इसमें रख रहे हैं, मैं मिक्सअप कर दूँ, निकाल लो कितना ये 4 ये -3x1 इधर आया और उधर ले जाओ पी ए बी बाई एल क्यूब, अंदर बचा लो, देख लो क्या क्या बचा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, अब ये वाली सारी चीज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और माइनस 6ab, यही है क्या, कौन सा, क्यों, x1 और ये -4x1 कितना हुआ यार, ये चीज तो आनी चाहिए। सो कितना बचा अंदर, पी ए बी बाई एल क्यूब, कितना हुआ ये तो गया, दिस वन कैंसिल आउट, -3b स्क्वायर और प्लस -3ab, ठीक है, तो कितना हुआ, माइनस बाहर आ गया क्या, -PAB डिवाइडेड बाई एल क्यूब और इसे b कॉमन ले लोगे क्या, तो ये हो जाएगा ये 3a प्लस बी और a प्लस बी क्या है l, इट बिकम्स टू बी -PAB और ये AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू एल and it comes to be -PAB square divided by L square. This is the value of x1, माइनस नहीं होगा, आपको टाइम टेबल चेंज करा, आप करने लग के मैं तो दूसरे को लगाता हूँ, दूसरा लगा दीजिएगा, समझ गया, मैं हाथ खड़े कर दूँगा, मैं नहीं करूँगा। आपको मैं बस जो है ना 5 मिनट का समय दो, मैं इसको 5 मिनट, x2 की वैल्यू ऑफ x2 ये हो गया p a स्क्वायर b डिवाइड बाई, these are the results। सो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि if this is a, this is b, this value क्या है ये, ma इक्वल टू x1 बराबर कितना ये p b स्क्वायर, दूर वाली वैल्यू इसका स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितने, mb बराबर x2 बराबर कितना p इधर का स्क्वायर
पी ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको क्या लिखा जाए, एम एफ बी सी क्या लिखा जाए बताओ, माइनस पी बी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये हो गया जाके एफ बी सी, एम एफ बी सी। और इसकी वैल्यू क्या लिखी जाए, पी ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, दिस वैल्यू इज एम एफ सी बी। ठीक है, इसके नीचे लिखो सिमिलरली इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एल बाई टू, सिमिलरली ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एल बाई टू, देन वैल्यू ऑफ x1 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2 कितना हुआ, डब्ल्यू एल बाई 8 क्या, डब्ल्यू एल बाई 8 क्या, डब्ल्यू एल बाई 8, ये होगा ना, करके देखो। So after this you have to remember few things. रिमेंबर क्या रिमेंबर रखना है, इसके लिए मैं अगर लिखूं एम एफ ए बी और एम एफ बी ए, तो इसके लिए हमने किया हुआ है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 क्या, इसके लिए कितना लिखा है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। इसके लिए ए और बी कितना, माइनस पी बी स्क्वायर ए बाई एल स्क्वायर, और ये पी ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। इसके लिए मैं दे रहा हूं फार्मूला माइनस 5 बाई 96 डब्ल्यू एल स्क्वायर, और इसके लिए है इधर सेम 5 बाई 96 डब्ल्यू एल स्क्वायर। क्लियर? और इसके लिए दिस वैल्यू इज एल बाई टू एंड इसके लिए भी एल बाई टू एंड दिस वन वैल्यू इज, अगर नहीं इसको अगर ए बी करें, इफ दिस वैल्यू इज ए दिस वैल्यू इज बी, देन दिस वैल्यू इज माइनस एम बाई एल स्क्वायर बी इंटू बी माइनस 2a, और ये वाली वैल्यू है एम अपॉन एल स्क्वायर ए इंटू ए माइनस 2b। क्लियर? दिस इज फॉर एम एफ ए बी, दिस इज फॉर ए। So these are some examples which you have to remember always. There may be any case of loading in between that, there may be any type of loading in between that, and you have to revise, you have to remember that result in calculating the ठीक है। अटेंडेंस मैं सर से ले लूंगा। हाँ म्यू ले लो, मोमेंट है।